سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نذیر حسین صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا روڈ میں اگر ہم دیکھیں تو پورے میرا روڈ کے ہر شخص، ہر گھر، ہر انسان کے دل و دماغ میں ان کا نام ہے، چونکہ میرا روڈ بسانے والی شخصیت اور وہ شخصیت جو ابھی مظفر حسین صاحب بول رہے تھے کہ بستر مرگ پہ تھے، ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میری قوم کو پڑھاؤ، اس کے لیے اسکول کھولو. تو ایک ایسی شخصیت جس نے میرا روڈ کو بسایا، میرا روڈ میں اسکول، کالج، ہاسپٹل، مسجد، تمام چیزوں کا انتظام کیا، اور ایک ایسا شہر جو ویل آرگنائز شہر بسایا گیا. یہ تو سبب بہت سارے بسائے گئے، مسلمانوں کی آبادیاں بھی ہیں، غیر مسلموں کی بھی آبادیاں ہیں، لیکن میرا روڈ شہر ایک ایسا ہے جو ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر تعلیم کے مواقع ہیں، جہاں پر کاروبار کے مواقع، ایک ایسا مکمل شہر بسایا گیا. تو یہ اس شہر کی خوبی ہے. اور آج جتنے بچے بھی ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنے اسکول بھی چل رہے ہیں، جتنے ادارے چل رہے ہیں، جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنی مسجدیں آباد ہیں، ان سب کے کاربند ہونے میں اور ان سب کے جو کام ہو رہے ہیں، اس میں آپ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس کا ثواب اور اس کام کا جو شرح ہے وہ جناب سید نذیر حسین صاحب کو جاتا ہے. ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، ان کا جو جذبہ تھا اللہ نے قبول کیا، اور وہ دنیا میں بھی ایک کامیابی کی مثال دے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین آخرت میں اجر دے، اور وہ آخرت میں بھی اللہ کے کامیاب ہے. آج ہم لوگ نے مسجد فیڈریشن کی طرف سے ان کے خراج عقیدت کا پروگرام کیا، اور سارے علماء، ہمارے فیڈریشن کے علماء اور ہم بھارتیہ کے پدادھیکاری، دارالقضا کے سب آئے، اور ان کو اسی بہانے ہم لوگوں نے یاد کیا، اور بہت سی باتیں ہم کو معلوم پڑی جو عام پبلک کو نہیں معلوم تھی. اس سے اور بھی مطلب یہ جو بتایا بھی مظفر صاحب نے کہ 6 مہینہ پہلے ان کو بولنے نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میری قوم کا خیال رکھنا، اس کو ایجوکیشن کے لیے دھیان رکھنا. بہت بہت بڑی بات ہے. اور ہم لوگ سب جتنے بھی ہیں سب ایجوکیشن پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ رہے گا کہ ہم ان کے نام سے ایک ایجوکیشن ہب کروانے کی کوشش کریں گے گورنمنٹ سے، اور ان کو ہم مظفر صاحب کو بولیں گے کہ اس کو گورنمنٹ اسکول سید نذیر حسین صاحب کے نام پہ گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ ہاسپٹل یہ چالو کرے. جہاں تک سوال نذیر حسین صاحب کا ہے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پورا میرا بھینگڑ جو شہر ہے وہ ان کو ان کے کاموں سے جانتا ہے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں، لیکن ان کا صدمہ، ان کا افسوس پورے شہر کو ہے. اس کی وجہ ہے ان کے کیے ہوئے کام جو انہوں نے قوم و ملت کے لیے کیا، اور نہ ہی قوم و ملت کو، انہوں نے سارے لوگوں کے، ہر سماج، ہر ورگ کے لوگوں کے لیے کیے ہیں. ان کے جانے کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ملا ہے جس نے ان کے بارے میں کوئی تعریف نہ کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم، سماج، دھرم، پرانت کا ہو. یہی ان کی کامیابی کا راز تھا کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ نسوارتھ کیا ہے، اور ان کی وجہ سے جو یہ شہر بسا ہے آج یہ ہر طریقے کی فیسلٹی سے سرسبز ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک چھوٹے سے شہر میں نہیں ہوتی ہے، اور اس کا پورا شرے نذیر حسین صاحب کو جانتا ہے. اور آج مظفر حسین صاحب کے منہ سے جو ان کے بارے میں ایسی باتوں کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے. ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین. دیکھیے ہمارے بیچ میں ان کے بہت سارے پہلو تو اس پروگرام کے ذریعے بھی آئے اور لوگوں کے ذریعے آئے، لیکن میرے دل کو جو ان کے 2 پہلو چھوتے ہیں نا، میں اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. شہر بسانا، بڑا کرنا، یہ تو ایک چیز ہو گئی. بساتے تو بہت سے لوگ ہیں، شانتی نگر بھی بسا، سارے بسے، لیکن وہ بسانے کے بعد اس کو اپنا سمجھنا، یہ ایک جو چیز تھی سید نذیر حسین صاحب میں، یہ بالکل یونیک تھی. اگر آپ تو چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ٹہل سکتے تھے، گھوم سکتے تھے، پھر سکتے تھے، تو وہ ایک ایک گلی میں جا کے، ایک ایک محلے میں جا کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بات کرتے تھے. جو لوگ، کچھ لڑکے اگر بچے بدماشی کرتے دکھتے تھے تو ان کو وہ ٹوکتے بھی تھے، ان کو بولتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، ڈپٹتے بھی تھے. یہاں سے جب انٹری کرتے لوگ آتے تھے نا، تو کوئی اگر غلط طریقے سے آ رہا ہے، کوئی ایسا لگتا تھا انہیں کہ یہ بدماشی کرنے کے فراق میں، تو اس کو روکتے بھی تھے. یعنی وہ جو محلے کا، وہ جو علاقے کا ایک بڑا ہوتا ہے نا، جو سرپرست ہوتا ہے، وہ کردار پراپر نبھاتے تھے.
ये उनकी एक अलग बात थी जो शायद थोड़ी रह गई होगी बातों में, लेकिन ये मुझे बहुत। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि इतने बड़े शहर के बसाने का प्रोग्राम बनाने वाला, और जिनके बच्चे शहर को बसा भी चुके उनकी ज़िंदगी के अंदर, और उसके बाद भी वो सादगी से वो आके अपने बंगले के बाहर बैठ के बिल्कुल सादगी से रहते हुए लोगों से बहुत सादगी से बात करते थे, प्यार से बात करते थे। मैंने तो डॉक्टर साहब वगैरह हम लोगों ने देखा, हम लोग कभी निकलते थे बहुत एहतराम से प्यार से बिठाते थे, हम लोगों से मशवरा करते थे, शहर के बारे में डिस्कस करते थे। ये दो इतने इम्पॉर्टेंट पहलू थे जो मैं समझता हूँ कि ये डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, कि वो जो बार बार बात आ रही सरपरस्त, वो सरपरस्त का एक्चुअल किरदार निभाते हमने सैयद नज़र हुसैन साहब को देखा है। और अब हम चाहेंगे कि हमारे उनके बाद सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब और जो इस शहर के बड़े लोग हैं, ये जो आम बस्तियों में से ये बात ख़त्म हो गई है ना कि बस्तियों का एक जो सरपरस्त होता था पहले ज़माने में, वो ख़त्म हो गई है अब नई बस्तियों में। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे शहर के बड़े लोग बिल्कुल वो सरपरस्त का किरदार निभाना बिल्कुल उस तर्ज पे शुरू करें जैसे सैयद नज़र हुसैन साहब करते थे। पहला तो हमें बहुत दुख हुआ, इस शहर को दुख हुआ। ये मीरा भाईंदर शहर जो है उसमें से एक शहर, मीरा भाईंदर शहर एक भाईंदर और मीरा रोड से बना हुआ शहर है। उसमें से मीरा रोड जो शहर है वो सैयद नज़र हुसैन साहब ने बिठाया था, उसके वो शिल्पकार है, भाग्य विधाते हैं। उन्होंने शहर ही नहीं बिठाया, आपके कौम के लिए एजुकेशन और आरोग्य के ऊपर, इंफ्रा के ऊपर ध्यान दिया। इसलिए आपको मीरा रोड जो शहर है वो सिस्टमेटिक बैठते हुए देखेंगे। हम आज उनको बहुत ही याद करते हैं, और मैं चाहता हूँ इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका का मीरा रोड जो एक पार्ट है, और उसमें बड़ा योगदान इस महापालिका में, उनका महापालिका बनने में, महापालिका का इंफ्रा बनने में, या इस शहर को प्रगति में। तो हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से एजुकेशन हब बने, एजुकेशन आरोग्य हब बने, और उस हब को सैयद नज़र हुसैन साहब का नाम दिया जाए। ये हमारे हिसाब से उनको श्रद्धांजलि रहेगा, और हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि नज़र हुसैन साहब की आत्मा को शांति लगे, और ईश्वर को प्रार्थना करते उनके परिवार, इनका परिवार सर मुज़फ़्फ़र साहब हो या उनका परिवार हो, उनको इस दुख से बाहर निकल के लिए शक्ति दे, और उनके परिवार के तरफ से भी जैसा नज़र हुसैन साहब काम करते थे उसी हिसाब से उनके हाथों से काम करे। यही हमारी श्रद्धांजलि है। वालिद साहब मरहूम के लिए आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कई लोग 1980 में, 1990 में और उसके बाद में यहाँ आए। बहुत ही मुख्तसर मैं कहूँगा, बताऊँगा कि सिलसिला 1960 से शुरू हुआ, और 1960 में क्यों शुरू हुआ उसका एक अलग ही इतिहास है। वालिद साहब पैदाइशी तौर पे यतीम हुए, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उनके नाना ने उनकी परवरिश करी, क्योंकि वालिद मोहतरम उमर जो थे वो अमरावती के सूबेदार हुआ करते थे और हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, वो अपनी ही दुनिया में रहा करते थे। तो नाना उनको लेके चले गए। तो सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट जो है हमारा, वो हमारे वालिद के नाना के नाम से, और उन्होंने उनकी तरबियत 5वीं 7वीं तक करी, और फिर वो जब इंतकाल कर गए तो उसके बाद 1947-48 की करीब वो उम्र के 14 साल में मुंबई में आए। और उस वक्त में जो 47 और 50 का किस्सा, जो भी लोग हिंदुस्तान में से माइग्रेट हुए यहाँ वहाँ, सबके किस्से एक जैसे, कोई फुटपाथ पे सोया, कोई रास्ते पे सोया, किसी ने क्या काम किया, किसी ने मजदूरी की। तो बहरहाल वो सारी चीज़ उन्होंने करी, और गोरेगांव में जाकर के 30-40-24 साल की उम्र में किसी कारखाने में काम करने लगे। धर्मेंद्र एक्टर जो है वो और वो साथ में काम करते थे उस जमाने 55 से 60 के बीच में, और उनके जो मालक थे वो गुजराती पटेल थे। तो उन्होंने कुछ पैसे वालिद साहब को, धर्मेंद्र को दिए कि आप दोनों जो है कुछ कारोबार करें। तो दोनों ने ज़मीनें लेना और बेचने का काम शुरू किया। तो मीरा रोड स्टेशन भी नहीं था, हाईवे भी नहीं था, हाईवे बन रहा था। 1960 के और 65 के दशक में धर्मेंद्र को फिल्म में अच्छा ब्रेक मिल गया, तो फिल्म लाइन में चले गए। वालिद साहब के पास जो पैसे थे तो ज़मीनें वगैरह यहाँ मीरा रोड और वसीला के रखते चले गए। 65 से 62 के बीच में वो गोरेगांव पानी
पांडुरंगवाड़ी आपको पता नहीं होगा, ग्रामीण सोसाइटी है, जवाहरनगर गोरेगांव गुजराती सोसाइटी है, तो उनके लिए ज़मीन का सामान काम करते थे और लेआउट बनाते थे। और जब उन्होंने उनसे कहा कि मुझे भी यहाँ पे एक मकान के लिए प्लॉट दे दो, तब उनसे कहा कि नहीं, आप तो मुसलमान हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वो हमारे में नहीं चलेगा। वो बात आदमी को बोलते हैं, कभी ठेस पहुँचती है, बुरा लगता है। वो दिलो दिमाग में बात बैठी और वो मीरा रोड की तरफ उनकी नजर पड़ी, अल्लाह की मर्जी थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो कलेक्टर कमिश्नर, उन्होंने कहा कि नज़ीर हुसैन, उनको नज़ीर हुसैन सारे कलेक्टर कमिश्नर, कि तुम अपने लोगों के लिए बस्ती ऐसी बसाओ जहाँ भी पढ़े लिखे लोग, मुंबई के जो नागपाड़ा, दिल्ली बाजार, मदनपुरा, इन इलाकों के अंदर छोटे छोटे मकान में है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन है, और उसमें से बाहर नहीं निकलते, उनको अच्छी बस्ती बसाओ आप, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्लेग्राउंड, जो कुछ आया आप मीरा रोड में देख रहे हैं, जो 1960 की बात बता रहा हूँ। तब जाकर के नया नगर का लेआउट बना 50 एकड़ जमीन में जो मुझे थी। तभी मुंशी साहब थे जो कम्युनिस्ट के थे बॉम्बे में। मेरा जन्म 66 में हुआ, ये मेरे पैदाइश के पहले की बात बता रहा हूँ। वो लोग सरकारों हुआ और उनको भी अंजुमन के लिए ज़मीन चाहिए था 70 के दशक में। 4 एकड़ जो अंजुमन की ज़मीन है वो उनको उन्होंने दी कि जहाँ आप और हम खड़े हैं इस प्लॉट में, यहाँ पे साड़ी छापने का कारखाना किसी का बना था, उसको 500 का प्लॉट दिया था। इस ज़मीन का अगर आप लैंड रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, सारे फेरफार में खान तलाटी की साइन मिलेगी इसके वालिद साहब की, 70 के दशक में। तो 60 से 70 के बीच में जब इतराफ में लोगों को पता लगा, ठाणे जिला जो था पहले से RSS का था, तो बहुत मुसीबत और तकलीफ उठाई करते थे। ये जो अजीजिया मस्जिद है, उसके बाजू में तबेला बनाया था, सारी एग्रीकल्चर जमीन की खेती लगाते थे, पानी हम थ्रेसर से पीने के लिए लाते थे। 70 के आसपास की बात था। तो आसपास के लोगों से, चंद्र से और यहाँ से जो है RSS के लोग आना, लोगों को मारना कि पाकिस्तान बन रहा है। आज जो नए को बोला जाता है ना, मिनी पाकिस्तान, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है अल्फाज, हम बचपन से सुनते आए, बचपन से इसको फेस करते हैं। तो लड़ाई झगड़े, मारा मारी, हमारी वालदा गन लेके खड़े रहती थी, हम छोटे छोटे थे। तो बहुत सारी किस्से कहानियाँ जो वालिद साहब की किताबों में हमने नहीं लिखी है, क्योंकि कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करना कई बात इंसान के साथ चली जाती है, तो कई बात आज भी हमारे दिल और दिमाग में है। उसका तस्करा कभी इंशाल्लाह कभी और करेंगे। तो कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करें। हाँ, जब हमारी वालिद साहब की वालदा, हमारी नानी का इंतकाल, वालिद साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, तो उनको दूध पिला के बड़ा करने वाली जैन फैमिली थी, उनके करीब में नांदगांव पेट में अमरावती। आप देख सकते हैं कि कुदरत किस तरह से इंसान को सोच विचार, अपनी जहनीत जो है बनती है, वो ओवरनाइट नहीं बनती है कि आप सेक्युलर बन गए, पैदा हुए, आपने भाषण दिया और सेक्युलर बन गए, नहीं होता है। नामदार ने बताया कि शांति नगर नहीं बनता। दहीसर जो शिवाजी महाराज का पुतला है, वो यहाँ से वो चर्च दिखता था। काशी मीरा भाईंदर रोड जो है वो 70 के साल में बना, 65 से 70 के बीच में। गिलबर्ट के जो वालिद साहब थे वो रोड के कॉन्ट्रैक्टर रहा करते थे। हमारे वालिद और उनको दोनों को मुक्ति की जोड़ी कहा करते थे, दोनों शॉर्ट हाइट के थे। तो इसके स्टोन जो इसके स्टोन से लेकर के पूरा रास्ता हमारे वालिद साहब ने बनाया 70 के दशक में, क्योंकि लेआउट बन गया तो रोड नहीं होगा तो कैसे होगा, स्टेशन, टिकट, ट्रेन, वो दूसरे किससे कहानी है। शांति नगर 80s में आया, तब उनको रास्ता चाहिए था, क्योंकि बस्ती चाहिए, लोग आना चाहिए, तब उनको रास्ता, ये जो पूरा रास्ता जो बना हुआ है उस जमाने का। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत मुसीबतों का सामना पूरी फैमिली ने किया, वालिद साहब ने किया, हमने किया, बहुत लड़ाई झगड़े, मतलब सब कुछ यहाँ
दबा के रखा। और इसीलिए लोगों को अपनी कौम को हम लोग हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जुबान पे कंट्रोल रखिए, जज्बात में मत आइए। हम हिंदुस्तान में हैं, माहौल खराब है, हम सब की नज़रों में है। हाँ, पर हम तरक्की करते हैं तो वो भी लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए तालीम की तरफ बढ़िए। वालिद साहब को तालीम नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्कूल बनवाई है हमसे। जब मैंने 1985 में कारोबार शुरू किया, वालिद साहब ने कुछ खास बिल्डिंगें बनाई नहीं, 2-4 बिल्डिंग बनाई, क्योंकि 70 से लेकर 79 तक के जब प्लॉट्स लोगों को दिया तो सारे मुस्लिम फैमिलीज संडे के दिन आती थी। मैं अच्छे से याद रखता हूँ, टिफिन लेके आते थे, बॉम्बे से बिरयानी कबाब खाना लेके आते थे, अपने अपने प्लॉट पर बैठते थे, खाते थे और चले जाते। और मेरे वालिद साहब को बोलते थे, नजर भाई कहाँ आपने हमको फंसा दिया, यहाँ क्या होगा। तो 79 में जो माहौल बन रहा था, ये पाकिस्तान बन रहा तो मुस्लिम लीग और शिवसेना एक साथ आई थी। सर बाला साहब ठाकरे को और कनान वालों को उन्होंने यहाँ पे लाई, और हमारे खुद के वालिद साहब के जो प्लॉट्स थे उसके ऊपर उन्होंने कुछ इमारतें बनाना शुरू करी। लोगों को ये लगता है कि नया नगर की बुनियाद 79 में गिरी, नया नगर की बुनियाद 1960 में गिरी। 79 में उन्होंने चंद बिल्डिंगें बनाई, फिर उसके बाद में वो सीमेंट की गड़बड़ हुई, रंगों के साथ वगैरह थे, फिर उन्होंने बंद कर दी 82 में। 85 में फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया, और 85 के बाद से जो प्लॉट पे कुछ हमने बिल्डिंगें बनाई, जो मेरे वालिद साहब ने डॉक्यूमेंट आप निकाल के देखोगे तो 1500 रुपये का डॉक्यूमेंट होगा, या 500 का होगा, या 1000 रुपये का होगा इसी प्लॉट का। मैंने 5 लाख 25 लाख 50 लाख आखिरी प्लॉट मैंने जब लिया 92-94 में, तो मेरे कम से कम 72 लाख रुपये 70। मगर 1960 से देखे तो मेरे वालिद साहब जब तक जिंदा रहे, जो प्लॉट के ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया, उसकी निगरानी वॉचमैन का काम उन्होंने किया। उनकी प्लॉट की निगरानी का वॉचमैन का काम किया। उनके घर का कोई जिनके नाम का प्लॉट था वो इंतकाल कर गए तो दूसरे खानदान के लोग आते थे कि हमको दे के गए। तो वालिद साहब बिल्कुल कोर्ट की तरह बैठ के बोलते थे, डॉक्यूमेंट बताओ, बिल बताओ, डेट बताओ, कोर्ट के पेपर बताओ, तो उस प्लॉट में जाना फोन कर पाए जिंदगी से। तमाम चीजें तो बाकी आप लोगों के सामने हैं। अमानत में ख्याल उन्होंने कभी नहीं किया। हमारी बहन प्यार के कश्मीर गई, अल्ताफ भाई के वालिद जो है वो जम्मू कश्मीर के, उनके वालिद साहब शेख अब्दुल्ला के साथ के चीफ सेक्रेटरी थे, और वो हमारे वालिद साहब के ख्यालात से बड़े मुतासिर थे। जब मैंने कारोबार शुरू किया तो मुझे उन्होंने जो अपने प्लॉट्स दिए मेरे वालिद साहब ने, विद कंडीशन था कि तुमको मेरी मस्जिद बनानी है, स्कूल बनानी है, अस्पताल बनाना है, ये शहर में शमशान, कब्रस्तान, बगैर मंदिर, मस्जिद सब तुमको बनाना है। और उस तरह से वो एक एक प्लॉट मुझे हर वक्त देते थे और एक एक काम मेरे से करवाते थे। लोगों को लगता है कि हमने अस्मिता बनाया, बहुत किसको कमाया, मगर जो लोग किसको कमाते हैं उससे कई ज़्यादा हमने लोगों की दुआएं कमाई, क्योंकि रिज़्क देने वाला, पैसा देने वाला, सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला है। तो 90 में उन्होंने 89 में उनसे कहा स्कूल बना, मैंने स्कूल बनाया। वो कश्मीर गए, अल्ताफ भाई के वालिद साहब को कहा कि मुझे अपनी बेटी को वापस ले जाना है। हमारी बहन BSc पढ़ चुकी थी, MSc कर चुकी थी, उनको बताया कि मैंने स्कूल चालू की है, मुझे मेरी बेटी को लिया कि मेरे गाँव को पढ़ाना है। सुन रहे खाली साहब, मैं बोल रहा हूँ। तो अल्ताफ भाई के वालिद साहब बहुत ही समझदार थे और बहुत ही वालिद साहब की इज्जत करते थे। उन्होंने अल्ताफ भाई से कहा, बेटा तुम जाओ यहाँ से, अपनी फैमिली को ले जा करके मीरापुर दोस्त यहाँ उनको वापस बहन को ला के BEd MAd कराया, और फिर NH में स्कूल की प्रिंसिपल बनाई। मैं कई सालों तक उन कहता रहा है कि हम प्रिंसिपल रख नहीं करना चाहिए, वो तनख्वाह देंगे। बोले वो तनख्वाह लेके जाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, मेरी कौम को नहीं पढ़ाएगी। हमारी जो छोटी बहन जिनके शोहर का इंतकाल हुआ कोविड में, हमने लंग ट्रांसप्लांट
में पढ़ा। उनकी शादी बेंगलोर में हुई 98 के करीब। वो BA LLB LLM। तो 99 में मुझे कहा कि मुझे उर्दू मीडियम स्कूल बनानी है। मैंने वहाँ पर लोड़ा के पास में 2 बिल्डिंग बनाई थी। लॉर्ड वाली साहब की नाम था और कमिटमेंट तो स्कूल में बनाना है। तो मैंने कहा स्कूल तो बना दिया मैंने। नहीं बोले 2 बिल्डिंग बनी है, ये उर्दू मीडियम की स्कूल है। साल भर मेरा उनका झगड़ा चलता। मैं उनसे कहता रहा कि उर्दू मीडियम क्यों करना है, 2 इंग्लिश मीडियम की तरफ जा। मुझे समझ नहीं आता, मगर वो अपनी बात पे कायम रहते थे और करके छोड़ा। उन्होंने गए हमारी बहन को वहाँ से लाया, असगर भाई को यहाँ लाया, और बहन को ला के BA करवाया और उर्दू मीडियम स्कूल चलाई। और आज भी मैं समझता हूँ नहीं के बराबर फीस उस स्कूल में है। NHD की फीस हाल दिया जाती होंगे, नहीं के बराबर की फीस आज भी NHD। फीस बढ़ाना नहीं, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, कौन को पढ़ाना है। और जब से सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट बना, ये उनकी ही तरफ से था कि चाहे किसी मजहब का आदमी हो, बच्चा हो, आके अगर स्कूल की फीस के लिए अपनी स्कूल में कहीं भी कोई मदद मांगे तो तुमको करना है। हम पिछले 35 सालों से उसी इंस्टीट्यूट से 1000 बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन बंद मुट्ठी लोगों की मदद करते हैं स्कूल की फीस के लिए। मेरा भाईंदर में 75 स्कूलों में फीस जाती है, आपकी भी स्कूल में हमारे घर से जाती है। उर्दू मीडियम की स्कूल बनी, मुझे आज समझना है 5-7 साल पहले जब मैं देखता हूँ लोड़ा के एरिए में बंगाल, बिहार, यहाँ यूपी से लोग आते हैं, रोज आते हैं, रिक्शा चालक आते हैं, हाथ गाड़ी चलाने वाले आते हैं, फ्रूट की हाथ गाड़ियाँ बेच रहे हैं। आपकी मस्जिद में भी 3 लोग रहते हैं फैमिली में, उनके माँ बाप वालिद वाले बच्चे के अनपढ़ हैं, गवार उर्दू मीडियम से पढ़े, 1ली क्लास, 2री क्लास, 3री क्लास, उनके बच्चों को उर्दू मीडियम में ही उनको लाना। हमारे लोग के पीछे लगे उर्दू मीडियम के स्कूल म्यूनसिपलिटी नहीं चालू कर पाई। अंजुमन वालों के पीछे लगते वो पूरे प्लॉट को भरनी हमने करके दी उनको। मुझसे कहा कि इसको पूरा भरनी करके दो, उनके पास पैसे नहीं। अंजुमन वालों का याद है, आप भी भाई पीछे पढ़ते थे 1990 से 95 के बीच में हमने उनको भरनी करके दी। हमारी संस्था अलग है, ट्रस्ट अलग है। तो ऐसी कई चीज़ें एजुकेशन के ताल्लुक से करी। और आज आप देखो कि नया नगर में खालिद नेहरू स्कूल है, पानीगढ़ स्कूल है और तमाम स्कूलें हैं। तो जितनी ज़्यादा स्कूलें और जितनी सारी मस्जिदें होगी, इबादत गाह होगी, वो शहर उतना अच्छा होगा। तो जहाँ तालीम होगी, दीनी तालीम होगी, दुनिया की तालीम होगी, उसी से शहर आबाद होता है, उसी से शहर जाना जाता है। बड़ी इमारतों से शहर नहीं जाना जाता। लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अदब व लिहाज के हैं, कितनी दीनी बातें, दीनी दायरे वहाँ पर है, उससे शहर जाना जाता है। तो दीनी माहौल रहना चाहिए, दुनिया भी रहना चाहिए, उर्दू जुबान के ऊपर काम करना है। तो नौशाद साहब उनके बड़े आशिक थे, हमारे वाली साहब, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब और नौशाद साहब मेरे वाली साहब के बहुत ही मतलब उनसे बड़े मोहब्बत करते थे। यार एक यतीम आदमी जिसकी जेब में गिड़की नहीं, वो आके शहर बचाने का सोचता है, कौम को पढ़ाने का सोचता है, इतना जिगर बनता है। हम इतने बड़े सरमाएदार, हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमेशा महीने में 1-2 बार 2 बार तो उनके नौशाद साहब के घर पे रहे, दिलीप साहब आ जाते 5-7 बार तो मैं था साहब। तो मुशायरे का जो सिलसिला शुरू हुआ वो नौशाद साहब के घर से, वहाँ से बातचीत हुई और नौशाद साहब 1985 में आए और पहले हमारे घर पे मुशायरा हुआ, फिर अस्मिता हाउस पे और फिर बढ़ते 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 तो पूरा भी इतिहास आप लोग जानते हैं। उसके पीछे का पर्पस उर्दू जुबान को जिंदा रखना, लिटरेचर को जिंदा रखना। 7वीं क्लास में मेरे वाली साहब पढ़ते, लेकिन आज भी उनके कमरे में कुछ नहीं तो 700-800 किताबें हैं। पढ़ाने वाला कोई नहीं था, बूढ़े इंसान खुद पढ़े। तो तालीम आपके हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा तालीम हम करेंगे। मैं भी एक हाल ही का एक किस्सा सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं भी एक दिन के लिए इवेंट हो गया, मेरे साथ में हमारे कांग्रेस के लीडर थे, हम लोग फ्लाइट में घुसे तो वो बिजनेस क्लास में तो उधर रुक गए, मैं आगे चला गया, अपना सीट पे बैठ गया। सुबह 6 बजे की फ्लाइट में सो गया। जैसा
देखो वो एक बच्ची आई, मुझे उठाई एयर होस्टेस और नीचे बैठ गई, पैसेज होता ना उसमें नीचे बैठ गई और बैठ करके मुझसे कहा कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरा रोड रहती हूँ, आपने मेरी स्कूल की फीस भरी, आपने मेरे कॉलेज की फीस भरी, मैं नहीं, आपने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस भरी और मैं इसके लिए एयर होस्टेस मेरी वाला हॉस्पिटल में, आपने उसके लिए 2 लाख रुपये खर्चा, वो बच गई। आज मैं आपको मिली हूँ, मैं यहाँ आ गया, मैं शादियों में जाता हूँ, बच्चियाँ बोलती हैं कि सर आपकी वजह से हम पढ़ लिए, बच्चे बोलते हैं पढ़ लिए, तो मैं याद आता है हमारे वाले साहब का खाना क्या था। बॉम्बे जाता हूँ कहीं भी मार्केट में, सब जगह बच्चे मिलते हैं, बच्चियाँ मिलती हैं, पढ़े लिखे टाई लगा के, तो जो इंसान यतीम था, जिसकी जेब में पैसा नहीं था, वो तब कौन पढ़ना चाहिए, वो तालीम आने के लिए और उसी काम को मुका के लिया है। मुझे अक्सर बोलते ये कौन ऐसी है जज्बाती है कि तुम क्या कर रहे हो समझ नहीं आई, इनसे जद्दोजहद नहीं करना, इनसे आर्ग्यूमेंट मत करना, जो करना है जिंदगी में करते चले जाना, इनको उल्टा जवाब मत देना, इनसे लड़ना नहीं। वो हमेशा बोलते तो हुजूर को दुनिया में लोगों ने अच्छा नहीं कहा, फिर पैगंबरों को अच्छा नहीं कहा, तो तुम्हारी मेरी क्या होगा। हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिस रात को इंतकाल हुआ जुमेरात का, अस्पताल में उनके साथी था, ऐसी हुई, उसको बताया मैंने कभी ऐसा हुआ है, मस्जिद पर कब्रस्तान का इंतजाम करो, बरसात का मौका है तो भी कर दो, 200-500 लोग आएंगे और कौन आएगा, कौन आता है किसी की मट्टी में आजकल, हम भी कहाँ जाते हैं, ठीक है यार इंतकाल हो गया चले जाएंगे, ताज़ियत के लिए फिर चले जाएंगे। लेकिन जब जनाजा लेके बाहर निकले तब एहसास हुआ कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत और उनके ख्वाब को लोगों ने कितना सहलाया। पूरे हिंदुस्तान में जितने मदारिसों में वो इमदाद करते थे, मुंबई में करते थे, उस सिलसिले का मुझे जारी रखा एकदम मोटी। आप लोग को बताता हूँ कि परसों कीजा था, कुरान खानी थी, तकरीबन 10,000 बच्चों ने मदारिसों में, मुंबई में, वतन में 10,000 कुरान शरीफ में 10,000 बच्चों को जो है खाना लाया। मेरे घर पर आप लोग आए थे, देखे थे, मत खुद देख की शौक तो थी, इतने सारे मदारिस के बच्चे कैसे। अजीज़िया की बुनियाद पहले रखी, गुलाम रसूल से इकबाल मालिक जानता होगा, जो मोहम्मद अली उनके वालिद साहब हैं, वो मेरे वालिद साहब के साथ 1970 के दशक से जुड़े थे और वो सारे मार्बल वाले इसी वक्त से जुड़े थे। वो हमेशा मेरे वालिद साहब के साथ रहते थे। तो 75, 76, 77 के आसपास उन्होंने बोला नजर में अपनी एक मस्जिद बनाते, तो ये प्लॉट वालिद साहब ने मस्जिद के लिए वक्त किया और दोनों ने मिलकर मस्जिद तामीर की। उसके बाद बस्ती बन के चली गई, तो फिर ये जामी मस्जिद था और इसीलिए आज तक वो उसमें ट्रस्टी है, न हम कभी गए न वो कभी गए। तो ऐसा पता नहीं और कितनी जगहों पे मदारिस और मस्जिदें बनाई, लोगों को उनकी तरफ देख के या हमारी तरफ देख के कभी ये लगता नहीं कि हम लोग कभी दीनी काम करते होंगे, क्योंकि उन्होंने हमको हमेशा बताया कि बेटा एक हाथ से देना, दूसरे हाथ को बताना चाहिए। देने वाले को भी इस बात का फख्र नहीं होना चाहिए कि मैंने इमदाद किया, और लेने वाले को शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं से कुछ दान किया। और मस्जिद में बोले जो रुमाल फिरता है वो उतना ही फिरेगा, कौन को भीख मांगने की आदत मत डलवाना। पाउती लेकर के मस्जिद की इमदाद के लिए, मदरसे की इमदाद के लिए कभी नहीं घूमना।
देखा होगा कि जामे मस्जिद अल शम्स के अंदर कभी भी इस तरह की बातें नहीं होती। बर्मा टिक का दरवाज़ा मेरे से बनवाया, जब मैं अपना मकान बना रहा हूँ 20 लाख रुपए का दरवाज़ा 20 साल पहले बनाया। मतलब इतना बड़ा दरवाज़ा क्या करना है, लोखंड का दरवाज़ा सफिशेंट है। बोले ये हिंदुस्तान है, कभी शहर में दंगे हुए तो मस्जिद में 10,000 आदमी रहना चाहिए, इसके लिए दरवाज़ा होना चाहिए। जो हुआ ना 22 जनवरी को, मुझे वो याद आता था उससे, मुझे वो दिन और उनके अल्फाज याद आते थे कि देखो क्या हुआ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें मैं नहीं समझता कि मैं 5-10 घंटे में भी बता पाऊँ। मेरे प्रश्न नहीं है, इस दुनिया भर की सारी बात। सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि दुआ अता फरमाइए और इस शहर और इस बस्ती को जो बनाने को हमको 60 साल लगे, 2 जनरेशन 1960 से 1924, 64 ईयर्स, 2 जनरेशन हमारी हो गई। मैं भी 59 का हो गया हूँ। ये रात में मुझे इसने ऑडियो मैसेज भेजा, मुझे छोड़ दो अभी सब कुछ, बहुत हो गया, छोड़ दो। लेकिन जो हमारी सब बोल के गया था, हवा करने के बाद उसे जीते जी बचा के रखने का काम दिया था। हमको कोई सियासत का शौक नहीं था। वो बोलते थे बेटा हाथ में छतरी चाहिए, धूप के लिए और बरसात के लिए। तो तुम्हारी जो सियासी छतरी है ना, ये मौका आने में बंद हो जाएगी, इसके लिए वो बोलते थे तुम खादी वाले कुछ काम किए। और ये जो ब्यूरोक्रेसी की छतरी है ना, ये तुमको एंड टाइम पर मदद करेगी। मैंने इस दंगे में देखा और उसी वजह से हम इस शहर को बचा पाए। उस जनाजे में कुछ नहीं तो 50 गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल ओवर महाराष्ट्र से आए और मुसलसल अभी भी रोज रिटायर्ड एसपी, APS, कलेक्टर, कमिश्नर दिल्ली से, सब जगह से। वरना कौन किसके लिए आता है? अधिकारी ट्रांसफर होकर दिल्ली चले जाते तो गाड़ी लेके आदमी को भेजेगी, उसकी दिवाली पहुंचा के। औरंगाबाद चले जाते, रिटायर होके चले जाते, उसके घर भेज जाते, कोल्हापुर जाके लेके आओ। हम तो यही नसीहत करते हैं कि बेटा ताल्लुका जिंदगी में जरूरी है। तुम्हारे साथ लोगों ने क्या किया जिस पे कभी ध्यान नहीं देना, तुम क्या कर सकते हो उतना करते हैं बस। लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा किया बुरा किया ये तो तुल्ला के ऊपर छोड़ देना। तुमको जो काम करना है, खिदमत का काम करना है, वन मंत्री करना है, या आपको करते रहना है। और यही मैं आपको बताता हूँ, आखिरी बात अभी 6 महीना पहले जब वो टेमरिंग करने लग गए, बात करना मुश्किल था, याददाश्त उनकी जा चुकी थी, थोड़ी बहुत याददाश्त थी। मैं नहीं 5-25 साल की उनको याददाश्त ही नहीं बची थी। तब भी मैं जाके बैठा था, मुझे करोड़ पैसा देते, मम्मी बोलती मुजफ्फर आया तो हंसने लगते थे, बोलते थे मेरी कौम को पढ़ा। 6 महीने पहले कल बात बता रहा हूँ, मैं रो पड़ा था। क्या आदमी को होश नहीं है? कौन पढ़ा, स्कूल बंद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया।